बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आई वांट टू डिस्कस समथिंग कि मुझे मैसेजेस मिलते हैं व्हाट्सएप में। कुछ आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना होता है, तो बेहतर ये है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेती हूँ ताकि हम उसमें डिस्कशन कर लें। कोई क्वेश्चंस हो तो वहीं पर मैं आप लोगों को आंसर कर दूँ। मैं व्हाट्सएप का लिंक जो है वो शेयर कर देती हूँ, आप लोग आपस में शेयर कर लें और ग्रुप एक बना लें, ठीक है। फिर ये कि उसमें आप लोग मुझे बता दें कि आप लोगों ने दिन के कितने क्वेश्चंस करने हैं, क्या किस क्वेश्चन में आपको मज़ीद डिटेल चाहिए। अभी हमारे पास ये है कि 600 ये MCQs हैं, इसके बाद ट्रांसफ्यूजन के भी 300 हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि 100 दिन में मुकम्मल हो जाएं, बट इट्स अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट टू डू 100, सो आई विल ट्राई टू डू दैट, ठीक है। लेट्स मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप एंड वी विल डिस्कस इन दैट। 201. Extravascular hemolysis is best characterized by all. Two types of hemolysis are there: extravascular and intravascular. In extravascular hemolysis, there is destruction of red blood cells in the spleen. So we will have increased LDH, we will have splenomegaly, and we will have jaundice due to raised unconjugated bilirubin levels. The hemoglobin concentration, it is increased in case of intravascular hemolysis. In that we will have hemoglobinemia, hemoglobinuria, so and reduced haptoglobin levels. So this is a feature of intravascular hemolysis. The option is here is D. Patient with which of the following leukemia go to DIC? So the leukemia which go into DIC is acute promyelocytic leukemia, because promyelocytes release procoagulants and procoagulants causes DIC. So in this case, the treatment which we will give is not like the chemotherapy. We will give ETRA. ETRA will cause will cause maturation of the cells, and in this case we can prevent the patient to go for going into DIC. Okay, which of the following is likely to show a panmyelosis? So panmyelosis, a myeloid is something in the myeloid series will cause panmyelosis, acute lymphocytic and acute lymphoblastic leukemia. These are from the lymphoid series. So chronic myeloid leukemia is the one in which have all the myeloid lineages are increased: WBCs, RBCs and platelets. And these two are acute leukemias, and acute leukemias usually come with bicytopenia and pancytopenia, not panmyelosis. Next is of 2204, a 5-year-old female, she fall from a tree and she required splenectomy for that. Okay, she recovered completely within 3 months. 10 years later, ठीक है, this is not related to this. 10 years later, she is having her yearly health maintenance exam. A blood smear on CBC shows hypertransferrinemia and increased TIBC, decreased ferritin, decreased hemoglobin and hematocrit. Which of the following represents her hematological results? ठीक है, यहाँ पे क्या है कि hemoglobin and hematocrit are less, and ferritin is decreased, and TIBC or transferrin levels are increased. So this is a typical scenario for iron deficiency anemia, in which we discussed that everything is low except TIBC. So TIBC will be increased. There is some other thing which we call it soluble TFR or STFR. STFR actually is increased in iron deficiency anemia, and it helps us to differentiate between iron deficiency anemia and anemia of chronic disease. When STFR is increased, so it points out towards the iron deficiency anemia. Now what is STFR? STFR, it tells about how much the bone marrow cells requires iron, like how they are starving for iron. It tells like the status of the bone marrow cells, ठीक है। और what is transferrin? Transferrin is the response of liver to the reduced iron levels. कितने iron it is like the iron drugs कि iron इतना कम है, और लिवर जो है वो ट्रांसफेरिन प्रोड्यूस करता है लाइक स्कैवेंजर कि कोई भी आयरन मिल जाए और वो इसको पिकअप कर ले. सो इट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ लिवर. ठीक है, ट्रांसफेरिन भी इसलिए इंक्रीज हो जाता है और STFR भी इंक्रीज होगा. STFR क्या है कि इट इज़ नॉट इफेक्टेड बाय इन्फ्लेमेशन. जैसे फेरेटिन लेवल्स हैं, फिर वो अगर एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज है, कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह, उसमें फेरेटिन इंक्रीज हो जाएगा, तो हमें वो हेल्पफुल नहीं, इट विल नॉट हेल्पफुल इन दैट केस कि हम उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज से डिफ्रेंशिएट कर लें. सो वी विल यूज STFR. STFR log ferritin index more than 2 points to true iron deficiency even when inflammation makes ferritin look okay. ये आपको याद ना भी हो, it's okay.
लेकिन ये आप याद कर लें, ठीक है, कि TIBC और STFR जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में इंक्रीज होता है। नेक्स्ट ये है कि प्राइमरी साइट ऑफ फॉलेट एब्जॉर्प्शन फॉर इज प्रॉक्सिमल जेजुनम एंड ड्यूडेनम। ड्यूडेनम इज प्योरली द साइट ऑफ आयरन, और इलियम जो है वो B12 के लिए, और फॉलेट के लिए क्या होगा, ड्यूडेनम एंड प्रॉक्सिमल जेजुनम। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज ऑल कैन बी एसोसिएटेड विद सिकल सेल एनीमिया एक्सेप्ट। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, सिकल्ड सेल्स होते हैं, उसकी वजह से हर जगह वेजोक्लूसिव, उसके वेजोक्लूसिव क्राइसिस होंगे, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम होगा, पेशेंट को इन्फेक्शंस होंगे, सो और उसी की वजह से थ्रोम्बोसिस होगी, ठीक है। सो सिकल सेल एनीमिया इज एसोसिएटेड विद थ्रोम्बोसिस नॉट ब्लीडिंग, सो दिस इज द ऑप्शन, ऑप्शन सी ब्लीडिंग डिजीज, ठीक है। हमने कहा कि ऑल कैन बी एसोसिएटेड विद सिकल सेल एनीमिया एक्सेप्ट ब्लीडिंग डिजीज, ओके। डायग्नोसिस ऑफ बीटा थैलेसीमिया इज एस्टैब्लिश्ड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक्चुअली इट इज स्क्रीनिंग। डायग्नोसिस जो इसकी डायग्नोस्ट होता है वो PCR होता है, और हम ये सारे स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जो हम करते हैं फॉर द बीटा थैलेसीमिया। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, और HB इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम देखेंगे कि HbA2 क्या है, वो इट विल बी रेज्ड, HbF जो है वो रेज्ड होगा, सो इट विल कंफर्म आवर डायग्नोसिस। A 20 years old female asymptomatic not requiring blood transfusion, her hemoglobin 30, ठीक है, not requiring blood transfusion, HB 13 है, it's normal, but HbF is 95%. So how it could be like when देखा HbF 95% और hemoglobin 13% है, and HbA2 is normal 1.5. So this is most likely a case of hereditary persistence of hemoglobin, के fetal hemoglobin persist करता है, 95% फीटल हीमोग्लोबिन होता है, और इट्स अ नॉर्मल थिंग, इसमें हीमोग्लोबिन नॉर्मल होगा, RB रेड सेल इंडिसेस भी नॉर्मल होंगे। अगर यही HbF 95 और यहाँ पर हीमोग्लोबिन 4 और 5 हो तो हम कह सकते हैं इट इज अ केस ऑफ थैलेसीमिया मेजर। All of the following are associated with beta thalassemia except beta thalassemia में स्प्लेनोमेगाली होती है क्योंकि एक्स्ट्रा मेड्यूलरी हेमाटोपोइसिस होती है, टारगेट सेल्स हमें नजर आएंगे इन द पेरिफेरी, एंड हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक सेल्स नजर आएंगे, और एनीमिया होगा। द थिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू बीटा थैलेसीमिया इज इंक्रीज ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी बिकॉज इट इज सीन इन हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है कि जो स्फीरोसाइट्स होते हैं उनका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो कम हो जाता है, वो स्फीरोसाइट्स जो है वो राउंड होते हैं और वो उसके अंदर वॉल्यूम कम होता है। जब हम वो सेल्स एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो वाटर विल फ्लो फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, सेल्स के अंदर सारा वाटर आ जाएगा और सेल विल बर्स्ट। अगर इसकी नज़र हमने एक नॉर्मल सेल रखा होगा तो वॉल्यूम उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होगी कि वो वॉल्यूम को कुछ वॉल्यूम उसके अंदर जो है सेटल हो सके, वो बर्स्ट नहीं होगा। उसकी ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी एक लेवल पर वो भी फ्रेजाइल होकर बर्स्ट होगा, बट नॉट इट इज अ नॉर्मल थिंग, नॉर्मल होगा, इंक्रीज नहीं होगा। इन केस ऑफ स्फीरोसाइटोसिस वो बहुत जल्दी जो है बर्स्ट हो जाएंगे, सो वी विल से दैट देयर ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी इज इंक्रीज्ड, ओके। और नेक्स्ट इज अ 32 years old female presents for routine checkup, her CBC shows hemoglobin of 9, MCV 72, RBC count 6.4 and RDW 12.8. What is the most likely diagnosis? ठीक है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है, इसके 4 DDs हमने डिस्कस किए थे जिसमें जो 2 इंपॉर्टेंट है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और थैलेसीमिया ट्रेट है। इन दोनों में हम कैसे फ़र्क कर सकते हैं कि हीमोग्लोबिन और MCV तो कम होगा, लेकिन अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा तो RBC काउंट भी कम होगा, एंड रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ विच रिफ्लेक्ट्स एन आइसोसाइटोसिस विल बी इंक्रीज, उसमें छोटे सेल्स भी होंगे बड़े सेल्स भी होंगे। जबकि थैलेसीमिया ट्रेट में यूनिफॉर्म माइक्रोसाइटोसिस होती है, RBC काउंट रिलेटिवली हाई होता है, ठीक है, और RDW नॉर्मल होता है, उसमें एन आइसोसाइटोसिस नहीं होती, ठीक है, नॉर्मल एक ही साइज के तकरीबन सेल्स होते हैं। ये इट इज सीन इन थैलेसीमिया ट्रेट, ठीक है, थैलेसीमिया ट्रेट का ये फीचर है। An elderly female presents with complaints of bluish discoloration of fingertips and earlobes. CBC show hemoglobin of 10.6, MCV 88. Numerous red cell agglutinates are seen on the peripheral blood smear. Which of the following statement is true? ठीक है, पेरिफेरल साइनोसिस हुई है पेशेंट को, और इसमें इसके रेड सेल्स जब स्मेयर में देखते हैं, इवन टेस्ट ट्यूब में भी एग्लूटिनेट्स नजर आते हैं। अगर आप उसके स्मेयर बनाते हैं तो यू विल सी देयर आर बिग रेड ब्लड सेल्स एग्लूटिनेट्स। सो व्हाट इज द कॉज? It is actually a cold agglutinin disease, and cold agglutinin disease is caused by the antibody IgM. So let's see the options. The antibody is bound to patient red cells in this order is IgG. No, IgG causes usually warm type of autoimmune hemolytic anemia. Spherocytes होंगे, DAT positive होगा. Complement is probably bound to patient red cells. Yes, this option is correct because IgM is a pentamer. IgM will bind the complement and it causes agglutination of RBCs.
So option B is correct here. Spleen is the main site of destruction in this patient, not both A and C. So the option B is correct here. Okay, next is 212. Absolute lymphocytosis and thrombocytopenia with or without lymphadenopathy, hepatomegaly, splenomegaly or anemia is what stage in CLL? rise staging. अच्छा, CLL is an important topic. इसका आप याद रखें कि staging system 2 है. One is rise staging and one is Binet. And you will answer this question by yourself after learning this thing. ठीक है, ये एक आसान सा टेबल है. मैं आपको I will explain it कि आपको बिल्कुल ये जो है ना इसी टाइम ही याद हो जाएगा. राइज स्टेजिंग में हम क्या करेंगे कि इसकी है 0 1 2 3 4 और बिनेट में क्या है स्टार्ट विद बी. सो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा A B C. ठीक है. ओ जीरो स्टेजिंग में क्या है, इसको पहले आप बिनेट को छोड़ दें, आप सिर्फ इसमें राय में आए. जीरो स्टेज में क्या होगा, देयर इज ओनली एब्सोल्यूट लिम्फोसाइटोसिस, लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया. सो इट विल बी हैव एब्सोल्यूट लिम्फोसाइटोसिस मोर देन 5000. विदाउट एडेनोपैथी, कोई एडेनोपैथी नहीं होगी, कोई ऑर्गेनोमेगैली नहीं होगी, कोई साइटोपिनियाज नहीं होंगे. ठीक है. देर ओनली क्या होगा कि हम सीबीसी देखेंगे और हमें लिम्फोसाइटोसिस मिलेगी मोर देन 5. ठीक है. और ये क्लोनल होंगे तो तभी वो CLL का केस होगा. नेक्स्ट इज 1 में कि जब लिम्फ नोड्स इनलार्ज होना शुरू हो जाए, जैसे सर्विकल है, एक्सिलरी है, इनग्वाइनल है, सो देन इट विल बी इन स्टेज 1. इसके बाद अगर लिम्फ नोड्स के बाद आप लिवर और स्प्लीन पर आए, अगर स्प्लीन या लिवर इनलार्ज हो, ठीक है, तो दिस इज 2. ठीक है. एनीमिया जब भी होगा it is 3 and whenever there is thrombocytopenia it is 4. चाहे एडिनोपैथी या ऑर्गेनोमेगैली हो या ना हो, if it is anemia, आप किसी अपने CBC देखा HB10 है, so it is 3. if it is thrombocytopenia, प्लेटलेट काउंट लेस देन 100 है, सो इट इज़ 4. बाकी कुछ भी चाहे बेशक ना हो, ये वाली चीज़ें. ठीक है. सो 0 1 2 3 4 एब्सोल्यूट लिम्फोसाइटोसिस इन लार्ज लिम्फ नोड्स, 2 is liver and spleen, 3 is anemia, 4 is thrombocytopenia. बिनेट में 3 ही है A B C. A में क्या है कि जो ऑर्गन इनलार्जमेंट लाइक लिम्फेडेनोपैथी है या हेपेटोस्प्लेनोमेगैली है, कितने एरियाज इन्वॉल्व हैं. इफ इट इज 0 to 2 it is Binet stage 1. if it is 3 to 5 it is Binet stage 2. but if it is, अगर हमारे पास हीमोग्लोबिन जो है, इन दोनों में तो हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स दोनों मोर देन 100 है, लाइक मोर देन 10 और मोर देन 100. अगर हीमोग्लोबिन लेस देन 10 हो जाए या प्लेटलेट्स लेस देन 100 हो जाए, इन दिस केस इट इज़ बिनेट स्टेज C. ठीक है. फिर चाहे कोई भी एरिया इन्वॉल्व हो नहीं हो, वट एवर इज दैट केस, अगर पेशेंट यानी हीमोग्लोबिन लेस देन 10 के साथ आ जाता है या प्लेटलेट्स लेस देन 100 के साथ आता है, वी विल कॉल इट बिनेट स्टेज C. सो नाउ टेल मी एब्सोल्यूट लिम्फोसाइटोसिस एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. देखिए यहाँ ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आ गया. विद और विदाउट लिम्फेडेनोपैथी, हेपेटोमेगैली, स्प्लेनोमेगैली और एनीमिया, व्हाट इज द स्टेज इन CLL राइज स्टेजिंग. तो कौन सी स्टेज बनती है, अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डेवलप हो गया, दोनों में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया लास्ट स्टेज में आता है, सो इट इज स्टेज 4. और अगर मैं पूछूं कि बिनेट में कौन सी स्टेजिंग है, तो देन यू विल से इट इज C. ठीक है. So option E is correct. Next, which myeloproliferative neoplasm progresses to acute leukemia? So it is CML. In CML, there is when there is blast crisis, so it will go. The patient can go into acute myeloid leukemia and acute lymphoid leukemia में भी transform होता है CML. ठीक है. Leukemia ALL नहीं है, leukemia reaction तो reactive है, and CML is a chronic myelomonocytic leukemia. Which of the following is characteristic of fibrotic change of प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस. ठीक है. जब भी प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस होगा, अगर मैरो जो है फाइब्रोटिक हो जाए, वहाँ पे सेल डेवलपमेंट उस तरह नहीं होती, तो क्या होगा कि एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस स्टार्ट हो जाएगी लिवर में, स्प्लीन में, और हमारे पास ल्यूकोएरिथ्रोब्लास्टिक पिक्चर मिलेगी, इमेच्योर NRBCs, इमेच्योर WBCs मिलेंगे, हमें टीयर ड्रॉप सेल्स मिलेंगे, स्प्लेनोमेगैली होगी. सो दिस ये चीज़ हमें बताएगी एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस के जो है हमारे पास जो है मायरोफाइब्रोसिस हो चुकी है और अभी स्प्लीन में जो है हेमेटोपोइसिस हो रही है, बाहर हो रही है. ओके. 215 पेशेंट्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग ल्यूकीमिया में गो इनटू DIC
if given routine chemotherapeutic agents. Yeah, I have discussed before that if in acute promyelocytic leukemia there is a high incidence of DIC, and if you give a normal chemotherapeutic agent, it will cause cytolysis, and cytolysis will release further procoagulants, and patient can go into DIC and die. So in this case we have to give the treatment of ETRA and arsenic trioxide ताकि maturation हो और procoagulants release ना हो. So option B is correct here. The most common class of immunoglobulin produced by malignant cells in multiple myeloma is, it is IgG type. 60 to 70% cases में जो M band है it is of IgG type. 20 to 25% cases में IgA भी होता है. Which of the following immunophenotypic marker is a pan B cell marker? So the CD19, it is a universal B cell antigen. ठीक है, CD19 is a universal B cell antigen, और CD3 is T cell का मार्कर है, CD33 माइलॉइड का है, और CD56 नेचुरल किलर सेल का मार्कर है. The erythroblast in acute erythroleukemia AML M6 are usually positive for which of the following? ठीक है, AML एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया है, कौन सा वेरिएंट है इसका? इरिथ्रोल्यूकीमिया M6 वेरिएंट है. इसकी जो स्टेन्स हैं या इम्यूनो मार्कर्स हैं वो कौन से हैं? पैस, CD71, CD117. So all of the above. Option D is correct. So in M6 it is PAS positive. ठीक है, पैस पॉजिटिव होगा, ग्रेन्युलर टाइप का होगा. CD71 इट इज़ ऑल्सो स्पेसिफिक फॉर एरिथ्रॉइड एंड CD117 चूँकि ये एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया से उसमें एक CD117 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. सो ऑल थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट. सो वी विल गो फॉर ऑप्शन डी. जस्ट रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट. व्हेनेवर देयर इज ग्रेन्युलोसिटिक लीनिएज को आपने पिक करना है तो MPO पॉजिटिव आएगा. MPO जो है वो एंजाइम को स्टेन करते हैं, एंजाइम्स को पिक करता है. SBB जो है सुडान ब्लैक ये फॉस्फोलिपिड्स को पिक करता है, उसको उसकी वजह से ये पॉजिटिव आता है. ग्रैन्यूल साइट्स में ग्रैन्यूल्स होते हैं ना, इस वजह से MPO पॉजिटिव आएगा, SBB पॉजिटिव आएगा, और स्पेसिफिक एस्टरेज CAE पॉजिटिव आएगा. सो इन केस ऑफ AML M1 M2 M3 M4 इन चारों में ये तीनों साइटोकेमिकल स्टेन्स पॉजिटिव आएंगे. मोनोसिटिक लीनिएज के लिए नॉन स्पेसिफिक एस्टरेजेस होते हैं M4 M5, और M4 में स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक एस्टरेज दोनों पॉजिटिव आते हैं क्योंकि M4 क्या है? माइलो मोनोसिटिक, यानी इसमें माइलॉइड भी है और मोनोसिटिक कंपोनेंट भी है, तो इसलिए जो वो स्टेन्स भी दोनों ही पिक करेगा, मिक्स टाइप का उसका होगा cytochemical stain positivity. Then it is PAS. PAS is classically positive. AML M6 में positive होगा. ठीक है, it has a coarse granular और block like cytoplasmic pattern. ठीक है, and often positive in AML M6 में भी, M7 में भी positive आता है, और उसके जो markers हम लगाते हैं फिर वो CD41 CD61 होते हैं, मेगाकैरियोसिटिक markers. ठीक है, so PAS हम M6 के लिए क्या चीज़ जो है आपको याद रखनी है? इट इज़ पैस पॉजिटिव, CD71 पॉजिटिव, और एक और चीज़ है CD235A इट इज़ पॉजिटिव. ये स्पेसिफिक है फॉर एरिथ्रॉइड, और CD117 कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द ट्रांसलोकेशन इज सीन इन एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया AML M3? सो इन AML M3 it is translocation 15-17 PML RARA fusion, and which causes maturation arrest. Which of the therapy may be used to prevent cancer from spreading to the brain? Which therapy we can use? Of course we will do CNS prophylaxis, intrathecal methotrexate we will give it to the patient. Okay, so Sudan black, MPO and specific esterases are positive in AML without maturation. In your key it is written AML without differentiation. I have corrected in my in this document. I have corrected it, and I have added so many points in this document. In front the purple color, the blue, the green color. So these are all the points which I have added for the clarification. So if you want this document, so I will make it, and in the end I will share it with you. So just let me know if you want this. Okay, so इसमें क्या है कि ये पूछ रहे हैं कि Sudan black, MPO and specific esterases are positive in ये वही है ग्रेनुलोसिटिक लीनिएज के हैं. ठीक है, इनको ग्रेनुलोसाइट्स को जो है स्टेन करना है. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट हेयर? इन्होंने आप लोगों के पास जो किया उसमें ऑप्शन बी दिया हुआ है, एक्यूट मोनोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, जबकि मैंने आपको बताया कि मोनोब्लास्टिक में नॉन स्पेसिफिक एस्टरेजेस जो ये है ना
एनी है, अल्फा नेफ्थाइल एसीटेट ब्यूटारेट एस्ट्रेज, ये पॉजिटिव होता है मोनोसिटिक लीनिएज के लिए। जबकि अगर आप ग्रेनुलोसिटिक लीनिएज लेते हैं तो उसमें एमपीओ, सुडान ब्लैक और सीएई पॉजिटिव आता है, मोनोसाइट्स नेगेटिव आते हैं। इसी तरह ही तो हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो आप लोगों के पास जो किया है उसमें ये जो है आप करेक्ट कर लें। इसमें ऑप्शन ए होगा AML विदाउट मेच्योरेशन, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है सुडान ब्लैक भी पॉजिटिव है, एमपीओ भी पॉजिटिव आएगा और स्पेसिफिक एस्ट्रेजेस भी पॉजिटिव आएंगे। ओके, नेक्स्ट इज 2222 35 years old फीमेल विद एनीमिया, ब्लीडिंग टेंडेंसी एंड विद 20% ब्लास्ट सर्कुलेशन, ठीक है। यहाँ पे हो गया ये कि ये एक्यूट ल्यूकीमिया है, पेशेंट एनीमिया के साथ ब्लीडिंग के साथ आया है, बाइसाइटोपिनिया होगा इसको, ठीक है। वॉज डायग्नोज टू हैव DIC, पेशेंट DIC में जा चुका है। मोस्ट लाइकली etiology इन दिस केस इज DIC किस ल्यूकीमिया के साथ एसोसिएटेड है, एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया, ऑप्शन डी। ओके, JAK2 mutation induces hematopoietic proliferation which is due to cytokine mediated, no. Hypersensitivity of progenitor cells to erythropoietin and thrombopoietin, yes. It is there is constitutive JAK-STAT pathway activation होगी और इस तरह जो है हाइपर प्रोलिफरेशन होगी ऑफ द मेच्योर सेल्स की। Reactive hyperplasia, no. Stimulation of viral oncogene, no. This is not related. Which of the following is a myeloid marker? myeloid का मार्कर इसमें क्या है, CD13 और इसके अलावा CD33, CD117, HLA-DR, ये माइलॉइड के मार्कर्स हैं, ठीक है। CD3 टी सेल का मार्कर है, CD7 टी सेल का है, CD10 बी सेल का मार्कर है, जर्मिनल सेंटर का मार्कर है। नेक्स्ट इज Philadelphia chromosome is an acquired abnormality of hematopoietic stem cell. It is present in the cells of Philadelphia chromosome जो है हमारे ट्रांसलोकेशन 922 की वजह से बनता है, ठीक है। ये किस किस में हमें मिलता है, माइलॉइड में, CML में भी हमें मिलता है और ALL एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया में भी हमें मिलता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। Next, the number of chromosomes have a significant value in the prognosis of which leukemia? Number of chromosomes. So number of chromosomes जो है हम इसमें देखते हैं acute lymphoblastic leukemia में कि hyper diploidy है, hypo diploidy है, कि अगर हमने पहले भी पढ़ा था कि 45 to 50 chromosomes involve हो तो इसको हम hyper diploidy कहते हैं और इसकी good prognosis है, जबकि hypo diploidy की poor prognosis होती है। So option C is correct here. Which of the following cytogenetic abnormality is associated with spontaneous remission of leukemia? So यहाँ पर है ट्राइसोमी 21 जो डाउन सिंड्रोम में होता है, इसमें क्या होता है तो देयर इज ट्रांजिएंट माइलोप्रोलिफरेशन होती है और उसके बाद वो ठीक हो जाता है। तो सो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज द डायग्नोसिस ऑफ CLL इज यूजुअली परफॉर्म्ड बाय इम्यूनोफिनोटाइपिक एनालिसिस ऑफ द पेरिफेरल ब्लड, राइट, व्हिच रिवील्स द क्लोनल पॉपुलेशन ऑफ CLL में कौन से मार्कर्स पॉजिटिव होते हैं, इसको आप याद कर लें। इट इज CD5 पॉजिटिव, CD23 पॉजिटिव, ठीक है। CD5 पॉजिटिव, CD23 पॉजिटिव। अगर CD23 नेगेटिव हो जाता है तो वो किसका मार्कर बन जाता है, वो मेंटल सेल का मार्कर बन जाता है, ठीक है। क्यों हमने ना ये CLL को मेंटल सेल और फॉलिकुलर लिम्फोमा से डिफरेंशिएट करना होता है। सो इफ इट इज CD5 पॉजिटिव, CD23 पॉजिटिव, इट इज अ मार्कर ऑफ CLL. इफ इट इज CD23 नेगेटिव, देन इट बिकम्स अ मार्कर ऑफ मेंटल सेल लिम्फोमा। ओके, बर्किट लिम्फोमा अकर्स इन एंडेमिक एंड स्पोरेडिक फॉर्म, ठीक है। एंडेमिक फॉर्म भी होता है इसका, स्पोरेडिक भी होता है। एंडेमिक केसेस इन अफ्रीका इज एसोसिएटेड विद, it is associated with HIV, EBV, infectious mononucleosis and hepatitis C. So the option B is correct here. EBV infection 95% cases in Africa they are अगर ये जो endemic है, it is 95% times associated with EBV infection. Okay, next question is translocation between chromosome 9 and 22 in CML leads to oncogene ABL being moved to BCR gene, ठीक है। ABL से BCR पे जाएगा ऑन विच क्रोमोसोम। यहाँ पे क्या होता है कि 22 से का एक पार्ट जो है वो आकर 9 से जुड़ जाएगा, 9 पे एक स्मॉल क्रोमोसोम हमें नजर आएगा, इसको हम 9 डेरिवेटिव कहते हैं। और 22 जो है शॉर्टर क्रोमोसोम होगा, उस क्रोमोसोम को हम फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कहते हैं। सो ऑप्शन हियर इज 22 generates chromosome 22 generates Philadelphia chromosome. So option B is correct here. It is chromosome 22. In acute lymphoblastic leukemia, which cytogenetic abnormality has a good prognostic index? ALL,
ज़्यादातर बच्चों में होता है, अगर बच्चों में हो इट हैज़ अ गुड प्रोग्नोसिस, अगर एडल्ट्स में हो तो इट हैज़ बैड प्रोग्नोसिस, पुअर प्रोग्नोसिस. सो विच वन इज एसोसिएटेड विथ गुड प्रोग्नोसिस? ALL विथ ट्रांसलोकेशन 1221, AL विथ ट्रांसलोकेशन 922. ठीक है, इसका ALL विथ ट्रांसलोकेशन 1221 इट हैज़ अ गुड प्रोग्नोसिस. ठीक है, इट इज ETV6 RUNX1 फ्यूजन. एंड ALL विद ट्रांसलोकेशन 922 जो इट हैज़ बैड प्रोग्नोसिस, हाइपोडिप्लॉइडी बैड प्रोग्नोसिस, हमने पहले पीछे भी पढ़ा. ठीक है, इनकी बैड प्रोग्नोसिस है एंड इट हैज़ अ गुड प्रोग्नोसिस. ऑप्शन हियर, करेक्ट ऑप्शन हियर इज ALL विद ट्रांसलोकेशन 1221 ETV6 RUNX1 फ्यूजन. नेक्स्ट इज बाइमोडल पीक. बाइमोडल पीक हमें किस में नजर आती है? इट्स अ टिपिकल फीचर ऑफ CML, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया. Okay, next is to differentiate between leukemia reaction should be and chronic myeloid leukemia, which cytochemistry is useful. So to differentiate, either it is a reactive case or it is a clonal case, we will go for lab score. Lab score will be high in leukemia reaction and it is low in chronic myeloid leukemia. Next is monoclonal absolute lymphocytosis is a करेक्टरिस्टिक फीचर. लिम्फोसाइटोसिस है यानी लिम्फॉइड मेच्योर सेल्स की प्रोलिफरेशन है और ये मोनोक्लोनल है. सो इट इज CLL. ठीक है, CML में तो माइलॉइड होते हैं और सो एब्सोल्यूट लिम्फोसाइटोसिस का पूछा है तो ये CLL है. ठीक, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया विद थ्रोम्बोसाइटोसिस इज द फीचर ऑफ. ऐसा कौन सा एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया है जिसमें हमें थ्रोम्बोसाइटोसिस मिलती है? सो AML विद ट्रांसलोकेशन 821 M2, AML विद इन्वर्जन 3 इसमें ट्रांसलोकेशन 3 होती है. ये AML विद इन्वर्जन 16, AML विद BCR ABL फ्यूजन और नन ऑफ द अबव. सो ऑप्शन B इज करेक्ट हियर. इन AML विद इन्वर्जन 3 इसकी पुअर प्रोग्नोसिस होती है और इसमें क्या होता है कि हमें थ्रोम्बोसाइटोसिस मिलती है और इसकी जो एक्टिवेट्स EVI1 जीन. ओके, और इसकी वजह से क्या होगा कि इंक्रीज मेगा कैरियोसाइट्स होंगे. सो ऑप्शन B इज करेक्ट हियर. AML विद इन्वर्जन 3 कैरीज हैज अ फीचर ऑफ थ्रोम्बोसाइटोसिस इन इट. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू WHO classification, pure erythroid leukemia या is classified when erythroid component is, it is pure erythroid है तो यकीनन erythroid ही ज़्यादा होगा. तो कितना ज़्यादा होना चाहिए? It should be more than 80%, right? Next is gum atrophy, gum hypertrophy. Gum hypertrophy is usually a feature of what? ALL, M2, M4, Hodgkin lymphoma, ALL. Actually it is a feature of M5, acute monocytic leukemia. वहाँ पे infiltration होती है monocytes की और gum hypertrophy होती है. AML M4 can be associated with gum hypertrophy. So AML M4 भी इसका जो है आंसर होगा. ठीक है, AML M4. According to WHO classification, which leukemia is included MDS MPN criteria. ठीक है, हम WHO की जो अभी क्लासिफिकेशन है न्यू वाली, इसमें हम देखते हैं ऊपर पहले MPN होते हैं, माइलोप्रोलिफरेटिव न्यूप्लाज्म्स हैं, फिर MDS होता है, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स हैं, और उसके बाद एक क्राइटेरिया जिसमें MDS MPN का क्राइटेरिया जिसमें MDS के भी फीचर्स होंगे यानी डिस्प्लेजिया वगैरह भी होगा और MPNs के भी होगा कि पेशेंट में के जो सेल्स है वो हाइपर प्रोलिफरेट होंगे, स्प्लेनोमेगैली होगा. सो इसमें कौन सा ऐसा है कि जो दोनों जो MDS MPN के क्राइटेरिया में आता है? सो AML तो एक्यूट है वो तो ऐड ही नहीं होता है. CML प्योर MPN में आता है. CMML जो है क्रॉनिक माइलोमोनोसिटिक ल्यूकीमिया के हाइब्रिड फीचर्स हैं, दोनों के इसमें फीचर्स आते हैं. सो इट इज़ इंक्लूडेड इन MDS MPN क्राइटेरिया. CLL तो टोटली लिम्फॉइड का है और CNL is included in MPN. Next is a 25 years old female presented with severe pallor. CBC showed neutrophil count of less than 0.5. Bone marrow cellularity was 20%. How severe is the aplastic anemia? मैंने आप लोगों को ये पहले भी पढ़ाया था. आई स्टिल अगेन टेक द पिक्चर फ्रॉम देयर एंड पेस्ट इट हियर ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए. एप्लास्टिक एनीमिया को हम हमेशा करेंगे कि आइदर इट इज़ सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया और वेरी सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया. ठीक है, सो इन दिस केस आप हमें मुझे बताएंगे कि जब न्यूट्रोफिल काउंट एक हाइपोसेलुलर बोन मैरो तो होगी तभी तो वो एप्लास्टिक एनीमिया है. अब CBC में अगर न्यूट्रोफिल काउंट लेस देन 0.5 है, ठीक है, तो विच टाइप ऑफ एनीमिया इज दिस? सो इट इज़ अ टाइप ऑफ
सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया। अगर ये लेस देन 0.5 के बजाय 0.2 हो जाए, सिर्फ 200 सेल्स हो, न्यूट्रोफिल्स हो, ठीक है, सो फिर वो कहाँ किस में आ जाएगा, देन इट इज़ इंक्लूडेड इन वेरी सीवियर। ये किसने इसको डिवाइड किया, अकॉर्डिंग टू कैमेटा क्राइटेरिया, इसको हम कैमेटा क्राइटेरिया कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस वी आर सेइंग दिस ऑल, जब भी सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया होगा उसमें हाइपोसेलुलर मैरो तो होगी, प्लस जो है मोर देन 2 और इक्वल टू 2 हमारे पास फीचर्स होने चाहिए। कौन से, ANC लेस देन 0.5, प्लेटलेट्स लेस देन 20, रेटिकुलोसाइट्स काउंट लेस देन 20। और अगर यही बाकी सब कुछ यही है, अगर ANC लेस देन 0.2 हो जाएगा तो इसको हम वेरी सीवियर में डाल देंगे। सो इन दिस केस हमारे पास ये अभी तक 0.2 पे नहीं है, 0.5 से कम है तो हम इसको सीवियर में डालते हैं। आई होप यू गेट दिस पॉइंट नाउ। ओके, नेक्स्ट इज रिफ्रैक्टरी एनीमिया। रिफ्रैक्टरी एनीमिया विद एक्सेस ब्लास्ट, ये ओल्ड क्लासिफिकेशन है MDS की। अभी हम ये RAB1 RAB2 यूज़ नहीं करते, तो इस तरह के नहीं आएंगे आप लोगों के पास। अभी WHO का जो न्यू है MDS का, वो मैंने पीछे वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। IB1 IB2 जो है वो प्लीज़ आप उधर से वापस पढ़ लीजिएगा, शुरू के MCQs में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, दीज ग्रुप्स आर डिफाइंड बाय द परसेंटेज ऑफ माइलोब्लास्ट इन द बोन मैरो, दिस रेंज फ्रॉम, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा हुआ है कि 2 क्लासेस RAB1 और RAEB2 का पूछा है विद रिफ्रैक्टरी एनीमिया विद एक्सेस ब्लास्ट, ठीक है। तो कौन से दोनों जो इसमें आते हैं, A में है 1 into 5 और 9 into 19, B 1 into 19 है, C 5 into 19 है, D 5 to 19 है। तो हमारे पास जो ब्लास्ट का आता है IB1 नहीं, IB1 और IB2 बोथ, तो स्टार्ट ये कहाँ से होता है, 5 से 19 तक होता है, ठीक है। 5 से 10 तक हो तो IB1 आ जाता है, और 11 से 19 तक हो तो IB2 आता है। तो इन्होंने हमसे दोनों पूछे कि कितने बोन मैरो में ब्लास्ट होना चाहिए, सो फ्रॉम 5 to 19 इट डिफाइंस द एक्सेस ब्लास्ट इन MDS, ठीक है। जब भी बोन मैरो में 5 से ज़्यादा हो जाए और 19 से कम हो तो इसको हम ब्लास्ट क्राइटेरिया में डालेंगे, IB1 और IB2 में हम डालेंगे, ठीक है। द इंटरेक्शन बिटवीन स्पेक्ट्रम एंड एक्टिन इज स्टेबलाइज्ड बाय विच ऑफ द इंटेग्रल प्रोटीन्स, प्रोटीन 4.1, एड्यूसिन एंड डिमेटिन, दीज आर साइटोस्केलेटल लिंकिंग प्रोटीन्स हैं, और ये सेल इंटीग्रिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, दीज आर इंपॉर्टेंट। सो ऑप्शन A इज करेक्ट। ये बाकी भी हैं, या आप पढ़ लें, लेकिन इसको याद कर लें। 4.1, ठीक है, 4.2 नहीं, 4.1 एड्यूसिन एंड डिमेटिन, दीज आर साइटोस्केलेटल लिंकिंग प्रोटीन्स। Next is, which of the following statement is not true about red cell membrane? Charged phosphatidyl groups of the phospholipids are hydrophilic, ठीक है, it is the correct option, ठीक है। Interior of the membrane is formed by hydrophobic bonding of the acyl chains and cholesterol molecules, this is also correct. Bilipid layer consists of approximately equal molar quantities of phospholipids and cholesterol molecules, it is also correct. So charged phosphatidyl group of phospholipids are only found at the outer surface of lipid bilayer, so this is wrong, दोनों surfaces पे होते हैं, outer भी inner भी, so this option is wrong, okay. Which of the following statement is true regarding hereditary stomatocytosis? हमने बताना है which is true, okay. It is inherited as autosomal recessive disorder, no. Hyperkalemia can occur due to potassium leak from red cells. Splenectomy is followed by thrombotic tendencies, and variants having sodium and potassium leak have some same morphological changes and as hereditary stomatocytosis. So ऑप्शन C इज करेक्ट है कि जब हम इन केसेस में स्प्लेनेक्टमी करवा देते हैं पेशेंट की, सो उसके बाद थ्रोम्बोटिक टेंडेंसीज होंगी, ठीक है पेशेंट, क्योंकि स्प्लीन भी जो है, स्प्लीन में सिक्वेस्ट्रेशन होती है रेड सेल्स की भी, प्लेटलेट्स की भी, सो वो सारा पूल जो है जब स्प्लीन नहीं होगा वो ब्लड में शामिल हो जाएगा हमारे सर्कुलेशन में, सो देयर विल बी थ्रोम्बोटिक टेंडेंसीज इन दैट स्प्लेनेक्टमी पेशेंट्स, ठीक है। सो C is correct. Regarding hereditary spherocytosis, which statement is true? Hereditary spherocytosis in Japanese families is mostly associated with deficiency of alpha spectrum. 25% of cases of hereditary spherocytosis involve deficiency of band 3, ठीक है, दिस वन इज करेक्ट। हमने एक में पढ़ा था कि एनकायरी 50% केसेस में एनकायरियन इन्वॉल्व होता है और 25% केसेस में बैंड 3 में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन बिलो अम्बिलिकस, नो, इसमें स्प्लीन की इनलार्जमेंट होती है
बट हम कहते हैं कि टिप इज़ पाल्पेबल, 14 सेंटीमीटर से इनलार्ज होता है तभी हमें थोड़ा सा पाल्पेबल होगा, लेकिन इतना नहीं होगा कि अम्बिलिकस तक आ जाए. दैट इज़ अ मैसिव स्प्लेनोमेगाली. इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन दिस केस. ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस इज नॉट एसोसिएटेड विद, हमारे पास जो हेरिडिटी स्फीरोसाइटोसिस है इट इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट. सो विच स्टेटमेंट इज ट्रू इज दिस वन. ओके, बैंड 3. इन एडल्ट लाइफ, yeah, in adult life, hematopoiesis is confined to spleen, liver, all bones, vertebrae and ribs. spleen and liver, so it is the axial skeleton, vertebrae and ribs में होती है. हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स, जो हमारे स्टेम सेल्स हैं वो उनके इम्यूनोफिनोटाइपिंग करवाएं तो व्हाट इज विल बी पॉजिटिव, इट इज दे आर CD34 पॉजिटिव एंड CD38 नेगेटिव. ओके, नेक्स्ट इज एपोप्टोसिस, इज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच देयर इज अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ. ये हमें आता है. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया इज, मोस्ट कॉमन कॉज, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी. और आयरन डेफिशिएंसी की मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, डाइटरी इनसफिशिएंसी. ठीक है, क्योंकि जब भी रेट्स ग्रोथ होती है, कुछ भी होता है, उस तरह हमारी डाइट नहीं होती, नेगेटिव आयरन बैलेंस की वजह से वी गो इनटू आयरन डेफिशिएंसी एंड वी डेवलप माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया. हेमोलिटिक एनीमियाज आर कॉज्ड बाय, ठीक है, ब्लड लॉस. ब्लड लॉस से तो नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होता है. B12 की डिफिशिएंसी से मैक्रोसिटिक एनीमियाज हैं. ठीक है, और उसमें हेमोलिसिस होती है लेकिन थोड़ी सी होती है. फॉल्टी एब्जॉर्प्शन, एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, दिस इज द डेफिनेशन कि जब भी रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन होती है दे आर कॉल्ड हेमोलिटिक एनीमियाज, और उसमें नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक ब्लड पिक्चर होती है. ठीक है, सो नेक्स्ट इज द रिएजेंट यूज टू मेजर पीटी इज, पीटी मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिएजेंट यूज करते हैं विट्रो में. ठीक है, फॉलोइंग आर द गुड साइटोजेनेटिक मार्कर्स इन AML. हम साइटोजेनेटिक मार्कर्स ALL के पढ़े. AML में गुड साइटोजेनेटिक मार्कर्स कौन से होते हैं, ट्रांसलोकेशन 821, ये M2 है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू फैब क्लासिफिकेशन. रन X1 T1 फ्यूजन, और इसमें क्या होता है, कुछ मिच्योरेशन होती है और इसकी गुड प्रोग्नोसिस होती है. ठीक है, if we treat the patient it has a good prognosis. Next is for routine CBC examination, which anticoagulant is used. So CBC के लिए हम EDTA यूज़ करते हैं, क्योंकि EDTA क्या करता है, चिलेट्स तो करता है, चिलेट्स कैल्शियम, ताकि ब्लड को हमारा क्लॉट ना हो. इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है कि ये सेल मॉर्फोलॉजी को प्रिवेंट करता है. हेपरिन जो है वो सेल मॉर्फोलॉजी को ख़राब कर देता है. इसका ब्लूइश बैकग्राउंड हमें पीछे नज़र आता है, तो हेपरिन हम इस सेल मॉर्फोलॉजी के लिए नहीं यूज़ करते हैं. हेपरिन हम साइटोजेनेटिक्स के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, ग्रीन टॉप बॉटल होगी और हम ये साइटोजेनेटिक्स जब हमें करवानी होती है वी यूज़ हेपरिन. ठीक है, नेक्स्ट इज shelf life for tubes containing trisodium citrate as anticoagulant is 9:1 ratio is 3 months. ठीक है, जो इन ट्यूब्स की शेल्फ लाइफ है जिसमें हम ये कोगुलेशन अपनी करते हैं, 9:1 रेशो रखते हैं कि जिसमें 9 पार्ट्स हम ब्लड के डालते हैं, 1 पार्ट्स हमारे पास एंटीकोगुलेंट होता है सोडियम सिट्रेट. सो इसकी शेल्फ लाइफ है 3 मंथ्स. ठीक है, 3 मंथ्स, रिमेंबर इट. सीवियर हीमोफीलिया, हम कोगुलेशन में आ गए. सीवियर हीमोफीलिया इज टिपिकली एसोसिएटेड विद व्हाट परसेंटेज ऑफ फैक्टर 8 इन द प्लाज्मा. अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी. रोटेशन के जो पीजीज है आई थिंक सो ये आप लोगों के लिए ज़्यादा होगा, बस जितना ये यहाँ तक आप कर लें इट्स इनफ फॉर यू. ठीक है, बट लेट मी एक्सप्लेन इट अ लिटिल बिट मोर. तो सीवियर हीमोफीलिया जब हमने देखना होता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ फैक्टर 8 इन द प्लाज्मा, लेस देन 1, 2%, 5, 3 और लेस देन 2%. ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट है, लेस देन 1%. जब सीवियर हीमोफीलिया हम किस चीज़ पे हीमोफीलिया डिसाइड करते हैं, फैक्टर 8 की एक्टिविटी पे, परसेंटेज पे, कितनी फैक्टर 8 की एक्टिविटी है. ठीक है, अगर फैक्टर 8 की एक्टिविटी लेस देन 1% हो तो हम कहते हैं ये सीवियर हीमोफीलिया. अगर 1 to 2% एक्टिविटी है देन इट इज़ 1 to 5% मॉडरेट, एंड मोर देन 5% आए तो हम कहते हैं इट इज़ अ केस ऑफ माइल्ड हीमोफीलिया. जब ये माइल्ड हीमोफीलिया होता है तो हम ऐसे पेशेंट्स को DDAVP जो डेस्मोप्रेसिन है वो देते हैं और पेशेंट बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं.
इफ़ इट इज़ अ केस ऑफ 1 to 5% है, मॉडरेट है या लेस देन 1% से है सीवियर, तो उसकी अलग ट्रीटमेंट होती है, हमें फैक्टर 8 लेवल्स देने होते हैं। फैक्टर 8 लेवल्स की अक्सर हमारे पास कंसल्टेशन आती है, उसका ये फार्मूला याद कर लें कि हमें बताना होता है कि हाउ मच फैक्टर 8 इज़ नीडेड फॉर दिस पेशेंट। सो द फार्मूला इज़ टारगेटेड परसेंटेज, ठीक है, जो हमें टारगेट परसेंटेज रखनी होती है डिपेंडिंग कि वो पेशेंट जो है उसकी कोई सर्जरी होने वाली है या वो सीवियर ब्लीड के साथ आया, किस टाइप की वो ब्लीड के साथ आया, वो हम जो है जब हिस्ट्री लेते हैं तो हम एक टारगेट सेट करते हैं। आई विल एक्सप्लेन इट अ लिटिल बिट मोर। और बेसलाइन ये है कि जब हम फैक्टर 8 लेवल्स उस बंदे के करवा लेते हैं तो वो फैक्टर लेवल्स 0 हैं या 4.9 है, 5 है, 10 है, क्या फैक्टर जो है बेसलाइन, मतलब इस टाइम उसकी बॉडी में कितने फैक्टर 8 की एक्टिविटी प्रेजेंट है, तो हम इसको टारगेट को माइनस करेंगे बेसलाइन के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे वेट इन केजीज एंड मल्टीप्लाई बाय 0.5। फॉर एग्जाम्पल अगर एक 70 kg का एडल्ट है और वो बैड जॉइंट ब्लीड के साथ है, ठीक है, जॉइंट ब्लीड इज अ सीवियर टू मॉडरेट टू सीवियर ब्लीड है, तो इसमें हमने परसेंटेज जो है टारगेट परसेंटेज 60 रखनी होती है। और हमारे पास अगर बेसलाइन पेशेंट का हुआ है तो ठीक है, वो यहाँ पुट कर देते हैं। अगर बेसलाइन हुआ ही नहीं है और पेशेंट ब्लीड कर रहा है और हमने अभी टेस्ट भेजा अभी तक आया नहीं है, तो इस केस में हम परसेंटेज 0 कर लेते हैं। सो वी विल डू, सो व्हाट विल बी 60 इंटू 70 इंटू 0.5 2100, तो हमारे पास जो है पेशेंट की ये डोज है, आईयू में हमने ये डोज बतानी है। और इसमें क्या करेंगे कि आप स्टैट में भी दे सकते हैं और 12 आवरली भी दे सकते हैं। अगर पेशेंट को डेंटल एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत है, उसमें इतनी ज़्यादा ब्लीड नहीं होती एज कम्पेयर टू दिस केस, सो हम उसमें परसेंटेज 40% हम अपना रख लेते हैं टारगेट। और अगर एक पेशेंट मेजर सर्जरी उसकी होनी है तब हम 100% अपना रेट रखेंगे, टारगेट रेट कि हमें इतना चाहिए। और उसको बेसलाइन अगर हमारे पास नहीं है हम 0 कर लेंगे, अगर अवेलेबल है हम वही परसेंटेज वही ऐड करके, इट विल बी अराउंड 2940, ठीक है। और हम ये क्या करेंगे कि स्टैट भी दे सकते हैं और 12 आवरली भी दे सकते हैं, और उसके कुछ 15 to 10 मिनट्स बाद हम वापस चेक करेंगे कि अब फैक्टर एक्टिविटी क्या है, ठीक है, और उसके हिसाब से फिर हम डोज मैनेज करते हैं। और DDAVP मैंने आपको बताया डेस्मोप्रेसिन वी विल गिव इन केस ऑफ माइल्ड और नॉन मेजर ब्लीड, ठीक है, 5 to ओके। सो इस केस में क्या होता है कि जब हम DDAVP देते हैं पेशेंट को और पेशेंट को माइल्ड हीमोफीलिया है, कोई मेजर ब्लीड नहीं है, तो उसकी जो परसेंटेज एक्टिविटी है वो फिर 5% से 10 to 40% तक भी इंक्रीज हो जाती है। सो इट इज सो गोल्ड इन केस ऑफ माइल्ड हीमोफीलिया। Okay, next, which of the following lab investigation is a feature of hemophilia? APTT PT प्रोलॉन्ग होता है या APTT प्रोलॉन्ग होता है, TT प्रोलॉन्ग होता है, ब्लीडिंग टाइम, D डायमर। PT हमने PT इज नॉट रिलेटेड टू हीमोफीलिया, आइसोलेटेड APTT जो है वो प्रोलॉन्ग होता है इन केस ऑफ हीमोफीलिया, ऑप्शन बी। फाइब्रिनोजन डेफिशिएंसी इज इंडिकेटेड बाय व्हाट, किस चीज़ की प्रोलॉन्गेशन हमें फाइब्रिनोजन डेफिशिएंसी जो है वो फाइब्रिनोजन फॉर्मेशन और वो फिब्रिन में कन्वर्ट होना, वो कोगुलेशन जो पाथवे हमारा वाई शेप्ड उसमें सबसे आखिर में आता है, ठीक है। शुरू वाले जो पीटी होता है वो हमारे पास एक्सट्रिंसिक पाथवे को मॉनिटर करते हैं, एपीटीटी इंट्रिंसिक को मॉनिटर करता है और साथ में कॉमन पाथवे इसको भी ये दोनों मॉनिटर करते हैं। उसके एंड में जो फाइब्रिनोजन बन जाता है जो जिसमें इट विल कन्वर्ट इनटू फाइब्रिन, दिस टाइप इज मेजर्ड बाय थ्रोम्बिन टाइम TT, ठीक है। अगर थ्रोम्बिन टाइम प्रोलॉन्ग होगा तो हो सकता है कि फाइब्रिनोजन लेवल्स की कमी हो, या हो सकता है कि लेवल्स नॉर्मल है बट देयर इज डिसफिब्रिनोजेनीमिया, उसका वो फंक्शनल डिफेक्ट हो, ठीक है। सो वी हैव टू सी इन दैट लेटर ऑन। प्रोटीन C and S डेफिशिएंसी इज द टाइप ऑफ, ठीक है, प्रोटीन C और S मैंने आपको बताया दीज आर एंटीकोगुलेंट्स, दे आर ब्रेक्स ऑफ कोगुलेशन। CS से अंदाजा वो आप लोग वो कर लें, SC लाइक स्टॉप्स कोगुलेशन लाइक दे आर एंटीकोगुलेंट्स। इट इज़ अ टाइप ऑफ, जब प्रोटीन C और S की डेफिशिएंसी होती है, इट इज़ अ टाइप ऑफ हेरिडिटरी थ्रोम्बोफिलिया। हम हेरिडिटरी थ्रोम्बोफिलिया की जब भी स्क्रीनिंग करते हैं हम प्रोटीन C और S की डेफिशिएंसी चेक करते हैं, ठीक है। और इसकी जब डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है कि पेशेंट इज प्रोन टू वेनस थ्रोम्बोसिस। एक्वायर्ड थ्रोम्बोफिलिया में भी इनकी डेफिशिएंसी हो सकती है, लाइक व्हेन एवर वी गिव वारफरिन, ठीक है, वारफरिन देंगे, हमने कहा था वारफरिन 2, 7, 9, 10 प्रोटीन C एंड S। सो व्हेन वी गिव वारफरिन तो इनकी डेफिशिएंसी होगी, विटामिन K में इनकी डेफिशिएंसी होगी, लिवर डिजीज है, DIC है, DIC में कंजप्शन की वजह से हो जाएगी, ठीक है, थ्रोम्बोसिस में सारे उसमें भी कंज्यूम हो जाएंगे,
मेलिग्नेंसीज हैं या कीमोथेरेपी में एल एस्परजिनेज इट इज़ नोटोरियस फॉर कॉजिंग थ्रोम्बोफीलिया। और इसके अलावा प्रेगनेंसीज एंड ओसीपीज में जो है ये फैक्टर प्रोटीन एस की डिफिशिएंसी हो जाती है। सो प्रेगनेंसी इज अ प्रोकोगुलेंट स्टेट। ओसीपीज भी जो है वो कॉजेज थ्रोम्बोफीलिया इन अ पेशेंट, ठीक है। और अगर वो पेशेंट पहले ही प्रोन हो थ्रोम्बोफीलिया का, सो दैट पेशेंट कैन डेवलप थ्रोम्बोसिस, ठीक है। सो दीज एक्वायर्ड थ्रोम्बोफीलिया भी इसका आंसर होगा, हमें उसमें भी मिलेगा। सो कंसिडर बोथ इन दैट केस, ठीक है। सिनेरियो ज़रूरी नहीं कि ये आए, लेकिन आपको पता हो कि ये एक्वायर्ड में भी होता है और हेरिडिटरी थ्रोम्बोफीलिया में भी होगा। Next is causes of vitamin B12 deficiency. Megaloblastic anemia is like कौन cause करता है megaloblastic anemia? So it is fish tapeworm infestation, ठीक है। इसमें absorption defect cause करता है, so fish tapeworm causes, और hookworm causes कौन सा था? iron deficiency anemia, और fish tapeworm causes megaloblastic anemia. Next is if peripheral blood film is made up from heparinized blood, slide will be, अगर हम heparinized blood लें heparin green top में, और उसके बाद उसका जो है हम smear बनाए, so that what will be, it will be too blue. Heparin causes bluish smear due to shift of pH, और दूसरा ये है कि ये morphology भी ख़राब कर देता है heparin, ठीक है। फॉलोइंग इज यूज फॉर स्टेनिंग आयरन। आयरन के लिए हम कौन सा स्टेन यूज़ करते हैं? प्रूशियन ब्लू स्टेन यूज़ करते हैं, और वो क्या करते हैं? वो डिटेक्ट करता है फेरिक आयरन के ग्रेन्यूल्स को डिटेक्ट करेगा, और हमें अंडर द माइक्रोस्कोप वो ब्लू ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में नजर आते हैं। फिक्सेटिव यूज्ड इन लीशमैन स्टेन। लीशमैन स्टेन में हम मेथनॉल यूज़ करते हैं। मेथनॉल करता क्या है? इट फिक्सेस द स्मीयर एंड डिसॉल्व्स द स्टेन पाउडर, ओके। ज़ेंकर सोल्यूशन हम बोन मैरो के लिए यूज़ करते हैं, उसके बोन मैरो को प्रिजर्व करने के लिए। ZN स्टेन इज़ यूज्ड फॉर स्टेनिंग माइकोबैक्टीरिया। सुडान ब्लैक इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंशिएटिंग विच वन, हमने कहा था ये ग्रेन्यूल्स को स्टेन करता है, फॉस्फोलिपिड्स को स्टेन करता है, और फॉस्फोलिपिड्स वो माइलॉइड सीरीज में होते हैं, नॉट इन लिम्फोइड। सो सुडान ब्लैक हम यूज़ करते हैं माइलोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट को सेपरेट करने के लिए। अगर सुडान ब्लैक पॉजिटिव आ जाता है हम कहते हैं कि माइलोब्लास्ट, अगर वो नेगेटिव आ जाता है इन द ब्लास्ट सेल्स तो हम कहते हैं वो लिम्फोब्लास्ट हैं। लीशमैन स्टेन इज कम्पोज ऑफ एजुर बी एंड एओसिन वाई, ठीक है। कि मैं कुछ चीज़ें जो है वो कॉमन है वो जल्दी जल्दी कर रही हूँ ताकि हमारे ना 100 कंप्लीट हो जाए। अगर आप लोगों को किसी चीज़ में एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है तो प्लीज़ आप मुझे ग्रुप में बता दें, मैं आप लोगों को वहाँ ये एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। 265 फॉर साइटोजेनेटिक एनालिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोगुलेंट इज यूज। साइटोजेनेटिक एनालिसिस के लिए मैंने आप लोग को बताया कि हेपेरिन यूज करते हैं। हेपेरिन प्रिजर्व करता है WBC क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्रोमोसोम्स को प्रिजर्व करता है फॉर कैरियोटाइपिंग। सो दैट्स व्हाई वी यूज हेपेरिन फॉर साइटोजेनेटिक्स। और हेपेरिन किस ट्यूब में होती है? ग्रीन टॉप में होती है। EDTA पर्पल टॉप में होती है। सोडियम सिट्रेट जो है वो किस टॉप में होती है? ब्लू टॉप में होती है। नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम बाय ड्यूक्स मेथड इज 2 to 7 मिनट्स। अक्सर हमने यहाँ पे सारे केसेस देखे रहे, तो हम कहते हैं मोर देन 15, मोर देन 12, तो 7 मिनट से ऊपर हो जाए तो फिर हम उसको कंसिडर करेंगे कि ब्लीडिंग टाइम इज प्रोलॉन्ग्ड। नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इन एन एडल्ट मेल इज 13 to 17 ग्राम, 13 to 17 और 18 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। 13 से कम हो जाए तो वो हम कहेंगे कि ये एनीमिया है, जबकि 12 जो है वो फीमेल में नॉर्मल होगा। तो ये आपने ना हर एज के लिए अलग याद करना है, जेंडर के लिए भी याद रखना है। एज के लिए खैर आप लोगों के लिए आई थिंक सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट जेंडर के लिए याद हो कि फीमेल, मेल और बच्चों में। फॉर ऑप्टिमल स्टेनिंग द रिक्वायर्ड pH ऑफ लीशमैन स्टेन इज 6.8। नॉर्मल परसेंटेज ऑफ लिम्फोसाइट्स इन द पेरिफेरल ब्लड ऑफ एन एडल्ट इज, लिम्फोसाइट्स की परसेंटेज कितनी होती है? 20 to 45% तक होती है, ठीक है, 20 to 45%। ओके, 270 measuring hemoglobin concentration by automated method is based on ox number 1 oxyhemoglobin, manual cyanomet hemoglobin, self hemoglobin and deoxyhemoglobin। सो हम ये वाला यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? हम ड्रेपकिंस रिएजेंट यूज़ करते हैं, वो कन्वर्ट करता है हीमोग्लोबिन टू स्टेबल साइनमेट हीमोग्लोबिन, और ये जो है फिर हमें डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ द मेथड टू कैलकुलेट हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन इन एन ऑटोमेटेड एनालाइजर। Okay, then is in hyper segmented neutrophil। hyper segmented neutrophil हमें किससे कहते हैं? जब भी 5 lobes होंगे और more, so it is a hyper segmented neutrophil।
The largest cell in peripheral blood smear is monocyte. Monocyte is the largest, 20 micrometer तक इसका साइज होता है, ठीक है. The cytochemical stain which distinguishes myeloblasts from lymphoblast is it is कौन सा केमिकल स्टेन है जो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करेगा. एक SPB हमने पढ़ा पीछे, और यहाँ पे MPO माइलोपेरोक्सीडेज, ठीक है. ट्रैप किस में होता है, हेरी सेल ल्यूकीमिया में होता है. लैप हम किस में यूज़ करते हैं, टू डिफ्रेंशिएट ल्यूकीमाइड रिएक्शन फ्रॉम CML, ठीक है. पैस हमने पढ़ा कि ये ब्लॉक लाइक पॉजिटिविटी देता है ALL में, और इसके अलावा हमने M6 में भी पढ़ा, और ग्रैनुलर पॉजिटिविटी देता है उसमें साइटोप्लाज्म में, और M7 में भी पॉजिटिव आ सकता है, और ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज में भी पैस पॉजिटिव आता है. 274, the cytochemical stain which shows block like positivity, ठीक है, is the PAS. Next is CD marker positive for AML, acute myeloid leukemia है. CD marker positive for this is हमने पढ़ा था CD13, CD33, HLA-DR, CD117. So in this case it is CD13 and CD33. Okay, in ALL prognosis is unfavorable when the total WBC count is low. No, अगर जब low होगा तो good prognosis होती है, ठीक है. In a female child, patient age between 2 to 10 years, Philadelphia chromosome is present and Philadelphia chromosome is present, ठीक है. जब ये Philadelphia chromosome जो होता है BCR ABL, ये इसमें ALL में आ जाता है तो इसकी अनफेवरेबल प्रोग्नोसिस होती है. अगर WBC काउंट लो हो तो अच्छी प्रोग्नोसिस है. अगर पेशेंट की एज 2 to 10 years हो तो it carries a good prognosis. When the platelet counts are 50, so it has a good prognosis. Okay, so only this is related to the poor prognosis or bad prognosis. Auroras क्या है, auroras are found in the cytoplasm of हमेशा myeloblasts में होते हैं, ठीक है. वही ग्रेन्यूल्स फ्यूज होके और रॉड्स बना लेते हैं, और हमें माइक्रोस्कोप में वो ऐसे थोड़े रॉड्स की तरह नजर आते हैं, तो हमें ये दीज आर द seen in myeloblasts, ठीक है. Confirmation of myelofibrosis is usually done by bone marrow aspiration, bone marrow trephine, biopsy, splenic aspiration, immunophenotyping, IHC. जो जब बोन मैरो फाइब्रोसिस डेवलप हो चुकी है, जब हम एस्पिरेट करते हैं ना, हमें ड्राई टैप मिलती है, इसलिए फिर हम बोन मैरो ट्रिफिन लेते हैं, बायोप्सी उसकी करते हैं, और उसमें हमें जो है वो फाइब्रोसिस नज़र आएगी. हम स्टेन करेंगे, रेटिकुलन स्टेन करेंगे, तो जो भी है उसमें फिर हमें वो पॉजिटिव, उसमें हमें जो है सही टैप तरह से पता चल जाएगा कि ड्राई टैप की रीज़न फाइब्रोसिस थी. बेस्ट मेथड टू डायग्नोज मलेरिया इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, ब्लड कल्चर, थिक एंड थिन स्मीयर, PCR, ICT, ठीक है. जो हमारे पास बेस्ट मेथड है, हम हमारी जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो माइक्रोस्कोपी है, क्योंकि उसमें हम खुद देखते हैं, हमें पता चलता है, हम स्पीशीज को भी देख लेते हैं, हमें क्वांटिफाई भी कर सकते हैं. सो थिक एंड थिन्स जो फिल्म है विच इज़ डन बाय माइक्रोस्कोपी इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर मलेरिया. MPICT हम करते हैं, ये रैपिड मेथड है, स्क्रीनिंग मेथड है. लेकिन जब अगर इन केस के जब पैरासाइटेमिक इंडेक्स बहुत लो होता है तो ये ICT हमें जो है फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट देगा, ठीक है. इसलिए हमारे जो हम MPICT स्क्रीनिंग के लिए कर सकते हैं या डबल चेक करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट है वो ये है. और PCR भी हम कर सकते हैं, यूजली ये नहीं किया जाता, लेकिन फॉर मलेरियल पैरासाइट ये किया PCR कैन ऑल्सो बी डन. ओके, फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ डिक्रीज ESR. प्रेगनेंसी में ESR इंक्रीज होता है, ठीक है. ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लेमेटरी स्टेट है, क्रॉनिक लिवर डिजीज है, रिमेटॉइड है, इन सब में ESR इंक्रीज होगा. सिकल सेल डिजीज में ESR कम होता है. क्यों कम होता है? बिकॉज दीज आर सिकल्ड सेल्स. उनके लिए मुश्किल होता है कि वो रूलो फॉर्म एक जगह इकट्ठे हों और सेडिमेंट हों आसानी से, ठीक है. तो उसमें ESR डिक्रीज होगा. देन इज द 281 मीडियम कॉमनली यूज फॉर इलेक्ट्रोफोरेसिस इज. कौन सा मीडियम हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए यूज करते हैं? सेलुलोज एसीटेट. नॉर्मल रेंज ऑफ प्लेटलेट्स इन एन एडल्ट ब्लड इज 150 into 450. EDTA inhibits blood by clotting by किस तरह? By binding to or chelating calcium, ठीक है. With the type of staining we use to stain reticulocytes is a supravital methylene blue stain. हम यूज करते हैं रेटिकुलोसाइट्स को स्टेन करने के लिए. ओके, देन इज pseudothromboscytopenia is caused by which of the following anticoagulant. हम ब्लड लेते हैं, EDTA ट्यूब में लेते हैं, और वहाँ उसमें क्या होता है कि क्लम्पिंग हो जाती है. माइक्रोस्कोप में देखते हैं उसमें क्या होगा कि हमें प्लेटलेट क्लम्प्स नज़र आते हैं, और CBC में जो होता है काउंट्स कम होंगे. सो दिस इज कॉल्ड केस ऑफ pseudothromboscytopenia एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद EDTA.
Then 286, prolonged thrombin time is due to deficiency of which of the following clotting factor? Prolonged thrombin time, I told you, it is associated with fibrinogen deficiency, either quantitative or qualitative. Neubauer chamber is used for what? It is used for डिफरेंशियल काउंट के लिए हम यूज़ करते थे पहले, ठीक है, न्यूबॉर चैम्बर. फॉलोइंग आर द कॉज ऑफ रेज्ड ईएसआर. ईएसआर किस में रेज्ड होता है? एनीमिया में ईएसआर रेज्ड होगा, मल्टीपल माइलोमा में रेज्ड होता है, इन्फेक्शंस में, टीबी में, कोई भी इन्फ्लेमेटरी पैराप्रोटीनीमिया हो, फाइब्रिनोजन लेवल रेज हो, समय ईएसआर इंक्रीज होता है. सिकल सेल में मैंने बताया था डिक्रीज होता है. पॉलीसाइथीमिया में डिक्रीज होता है, क्योंकि जब भी रेड सेल मास इंक्रीज होगा, रेड सेल्स आर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, उनके अंदर उनके बीच में जीटा पोटेंशियल ज़्यादा होगा, वो आपस में क्लम्प नहीं और उनमें रूलो नहीं बन सकेगी, वो सेडिमेंट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा. तो इसलिए इन केस ऑफ पॉलीसाइथीमिया जो है वो ईएसआर जो है डिक्रीज होगा. टू मेजर द ईएसआर, द रेशियो ऑफ ब्लड इन ट्राइसोडियम सिट्रेट. यूजली हम जब कोगुलेशन ट्यूब लेते हैं ब्लू वाली, जिसमें ट्राइसोडियम सिट्रेट होती है और उसमें हम ब्लड कोगुलेशन के लिए जो यूज़ होती है, हम कौन सा रेशियो यूज़ करते हैं? 9:1. 9 पार्ट्स ब्लड होता है और 1 पार्ट जो है एंटीकोगुलेंट है. जबकि ईएसआर के स्टेट में हम ये वाला 4:1 वाला यूज़ करते हैं, जिसमें 4 पार्ट्स ब्लड होंगे और 1 पार्ट जो है वो ट्राइसोडियम सिट्रेट का होगा. और जो ट्यूब होती है वो हमारे पास स्टैंडर्ड वेस्टरग्रीन ट्यूब होती है, ठीक है. और इसमें इस ट्यूब में हमेशा 4:1 का रेशो होगा. नेक्स्ट इज ईएसआर कैन बी परफॉर्म्ड बाय. ईएसआर का जो मेथड है वो ये वाला मेथड है, वेस्टरग्रीन विंट्रोब्स मेथड, या दिस इज द स्टैंडर्ड मेथड फॉर ईएसआर. Okay, dye reduction test is done for the screening of which of them? It is G6PD deficiency. RBCs fail to reduce dye due to the lack of G6PD. ठीक है, तो इससे हम ये डिटेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, dye test is used for G6PD deficiency. Okay, the final step in a APTT procedure to form the clot is the addition of APTT में हम लास्ट स्टेप में क्या करते हैं? कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं और उसके बाद फॉरन टाइम नोट करते हैं कि कितनी देर में क्लॉट बन जाता है. तो द फाइनल स्टेप है, और पीटी में कैल्शियम क्लोराइड नहीं यूज होता है, सिर्फ इट इज यूज्ड इन APTT एंड इट इन द फाइनल स्टेप. ठीक है, इट इज कैल्शियम क्लोराइड. ओके, देन इज प्लेटलेट्स हैव okay, platelets have a half life of 8 to 10 days. Okay, then osmotic fragility test is used for the diagnosis of osmotic fragility test. मैंने अभी आप लोगों को पीछे एक्सप्लेन किया था कि it is used for hereditary spherocytosis. Spherocytes lies early in hypotonic saline. HbF is found normally in HbF adults में नहीं होता, ठीक है, चिल्ड्रन में होता है अंडर 6 months. ठीक है, फीटल हीमोग्लोबिन परसिस्ट अप टू 6 months ऑफ एज, और जब 1 साल का हो जाए तब हीमोग्लोबिन HbF लेवल लेस देन 1 होना चाहिए. ठीक है, कुछ केसेस में HbF लेवल 5% तक इंक्रीज हो भी जाता है. व्हेन एवर देयर इज स्ट्रेस हेमाटोपोइसिस हो तो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, लेकिन यूजली जब 1 साल लेस देन 1% हो जाता है बाय 1 year ऑफ एज. ठीक है, ओके. थैलेसीमिया इज ड्यू टू डिफेक्ट इन ग्लोबिन सिंथेसिस. ठीक है, नॉट हीम सिंथेसिस. हीम सिंथेसिस वाला कौन सा था? सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया था. ठीक है, तो यहाँ पर है ग्लोबिन सिंथेसिस. सो थैलेसीमिया इज अ क्वांटिटेटिव ग्लोबिन जीन डिफेक्ट, नॉट क्वालिटेटिव. ठीक है, इंक्रीज्ड इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इज कॉल्ड, इजी क्वेश्चन, I don't think so, ऐसे क्वेश्चन आते हैं. थ्रोम्बोसाइटोसिस. ओके, अ डिफेक्ट इन विच ऑफ दिस कोगुलेशन फैक्टर्स would result in abnormal PT and APTT. देखें, PT APTT बहुत प्रोलॉन्ग है, इसका मतलब है कॉमन पाथवे का डिफेक्ट है. कॉमन पाथवे में अपना वो वाई शेप याद रखिए. कॉमन पाथवे में कौन क्या आता था? 10 5 2 1, 10 5 2 1. ठीक है, तो इसमें कौन सा हमारे पास अवेलेबल है? 2 अवेलेबल है, सो 2 इज हियर. Okay, then a 5-year-old boy presented with progressive pallor and easy fatigability. CBC shows TLC of 5, platelets 235, hemoglobin 7 with MCV 61, MCH 21. यहाँ से हमें क्या पता चला कि प्लेटलेट्स ठीक है, TLC ठीक है, हीमोग्लोबिन कम है, MCV कम है, MCH कम है, सो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक. हिज DLC इंक्लूड्स न्यूट्रोफिल्स 30% है,
ठीक है, लेस है, lymphocytes 52% it is raised, monocytes 2% and eosinophils is too much raised, it is 16%. what is the most likely cause of this anemia? देखिए यहाँ पे माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया का दे दिया और इसमें eosinophilia बता दिया। eosinophilia हमने कहा पैरासिटिक इन्फेक्शंस में, और दूसरा ये कि एलर्जिक, जब भी कोई एलर्जी वगैरह होती है, एलर्जिक कॉम्प्लिकेशन, उसमें eosinophilia होता है। सो इन दिस केस द कॉज इज द वर्म इन्फेस्टेशन। जब भी वर्म इन्फेस्टेशन होती है, देयर इज क्रॉनिक ब्लड लॉस होती है, ऑकल्ट ब्लड लॉस होती है, we can ask the patient for stool for occult blood and slowly it causes the iron deficiency anemia. Okay, next, 10 years old boy, male patient, known case of thalassemia major with history of recurrent blood transfusion। 10 years का बच्चा है, ट्रांसफ्यूजन, रिकरेंट ट्रांसफ्यूजन्स होती रहती हैं। मॉनिटर ऑफ आयरन ओवरलोड शुड बी असेस्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। हमने आयरन ओवरलोड को मैनेज कर चेक करना है तो हम सीरम फेरेटिन लेंगे। अगर सीरम फेरेटिन मोर देन 1000 हो, सो वी विल से इट इज अ पेशेंट को वी हैव टू स्टार्ट द चेलेशन। A 20 years old male has developed progressive weakness of both limbs, easy fatigability and pallor. His hemoglobin was 9.5 with MCV 112, MCH 34। ठीक है, hemoglobin कम है, MCV raised है। He had history of partial gastrectomy है and esophagectomy है 10 years back. The most likely diagnosis here in this case is मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, क्योंकि पार्शियल गैस्ट्रिक्टमी है, इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, और पेशेंट को जो है वीकनेस है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, सो इट इज़ अ केस ऑफ मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट इज अ वुमेन ऑफ 32 years age developed shortness of breath and easy fatigability. Her HB was 10.5. What will be the first sign on peripheral blood film if she has a iron deficiency anemia? तो फर्स्ट साइन मैंने पिछले भी आपको बताया था कि RDW इंक्रीज हो जाता है, एनाइसोसाइटोसिस क्योंकि होती है, आप जब स्लाइड लगा के देखते हैं छोटे बड़े सेल्स नज़र आते हैं। ठीक है, सो क्या होता है कि सबसे पहले एनाइसोसाइटोसिस डेवलप हो जाती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, उसके बाद फिर हाइपोक्रोमिया होता है। A patient has been diagnosed as a case of megaloblastic anemia. Which of the following form is used in the treatment of megaloblastic anemia? हम ट्रीटमेंट के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? हम हाइड्रोक्सीकोबालामिन यूज़ करते हैं पेशेंट के लिए। ठीक है, हाइड्रोक्सीकोबालामिन एंड साइनो जो इसका एक वर्जन है, दूसरा वाला वो भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड मिथाइल कोबालामिन इज नेक्स्ट, बट फॉर मी आई विल गो फॉर दिस हाइड्रोक्सीकोबालामिन। ठीक है। A 27 years old female, gravida 3 para 2, presented with iron deficiency anemia. Her daily requirement of iron is, ठीक है, in case of pregnancy जो requirement of iron होगा वो होगा 1.5 to 3। ठीक है, और यहाँ पे 58 years old lady, known case of hypothyroidism and diabetes type 2 for last 2 years, presented with hemoglobin of 9.1 and MCV of 112. On examination she has vitiligo, no visceromegaly, blood smear shows macrocytic ovulocytes. What will be the most likely diagnosis? So the diagnosis in this case is like she has hypothyroidism। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म है और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस फॉर लास्ट प्रेजेंटेड विद HB ऑफ 9.1 MCV रेज है। ठीक है, यहाँ से तो मैक्रोसिटिक एनीमिया पता चल गया। विटिलाइगो, यहाँ से आपको देखिए 2-3 चीज़ें पता चलेंगी कि इट इज़ एसोसिएटेड विद सम ऑटो इम्यून कॉजेज। ठीक है, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर शोज मैक्रोसाइटोसिस। व्हाट विल बी द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? इट इज द, इन दिस केस इज द पर्निशियस एनीमिया। इसमें गैलोब्लास्टिक एनीमिया की कॉज पर्निशियस एनीमिया है। ओके, नेक्स्ट क्या है?